Morning students, welcome to bio class. Today I am starting a new chapter, Fundamental Units of Life, Cells. In this chapter we will study about the what is cell, the structure of cell, the shape of cells, size of cells and the types of cells. Then let us start. First is the body of all organism is made up of tiny microscopic units called cell. Okay, children, the body of all organism made up of cells. Just as building is made up of bricks, then the brick is called the unit of building. बिल्कुल ऐसे ही the body of organism is made up of cells, so cell is the unit of organism. ठीक है, या और unit of living things. Okay, the cell is a the definition of cell: the cell is a fundamental structural and functional unit of living organism and basic unit of life. What is the meaning of structural unit? Structural unit means the body is made up of tiny microscopic cells, so it is the structural unit of the living thing. Next word है fundamental functional unit. Functional unit means all the functions of our body या all the activities in our body done for the survival, then all the functions which are done in our body, these are done in the single cell also. So cell is also called the functional unit of the living thing. All the basic functions of the body like respiration, excretion, etc. are carried out by the cell through its cell organelles. So cell is called functional unit of life. Next आता है cell biology. Cell biology is also called the cytology. Cell biology को हम क्या कहते हैं? Cytology. Cytology is the branch of biology in which we study about all aspects of structure and functions of the cell. जिसमें हम सारी सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. This branch of biology is called the cell biology or cytology. Clear it? Next is discovery of cells. This question arises in our mind that how cell was discovered. ठीक है, तो cell was first discovered by the Robert Hooke in 1665. It was a chance discovery by Robert Hooke that a thin slice of cork contains a number of very small boxes he named the cellulae. The term cellulae means tiny rooms. ठीक है, and cellulae after the some time it is called the cells. Cellulae change into the cells. First time Robert Hooke made a माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो उस माइक्रोस्कोप के नीचे डिफरेंट थिंग्स को देख रहे थे. तो एक टाइम उन्होंने कॉर्क देखी. कॉर्क मीन्स बार्क ऑफ द ट्री की जो बार्क होती है उसकी थिन स्लाइस कट की, एंड देन ही सॉ अंडर द माइक्रोस्कोप ही सॉ द हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन दिस. बेसिकली इट इज़ द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट. Then he named this room-like structure, the tiny room-like structure is called the cellulae. Cellulae means tiny rooms. It is also called the cell. तो cell name जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा. बेसिकली उन्होंने फर्स्ट टाइम डेड सेल देखी थी. आफ्टर दैट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek was the first to observe free cells or living cells like bacteria, protozoa या रेड ब्लड सेल्स
and sperms in his homemade microscope. उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उस माइक्रोस्कोप में वो डिफरेंट थिंग्स को देख रहे थे. तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही सॉ द पॉन्ड वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप, देन ही सॉ द लिविंग क्रिएचर्स फ्लोट इन वाटर. ठीक है, देन इट वॉज द लिविंग सेल्स. तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स सीन बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ. ठीक है, नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. नेक्स्ट आते हैं जे पुरकिंजे डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. प्रोटोप्लाज्म मीन्स द जेली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल. It is called the protoplasm. Protoplasm discovered या named by the J. Purkinje. ठीक है, it is the discovery में हमने क्या पढ़ा, Robert Hooke gives the name the tiny microscopic structure cells. First time he saw the dead cells. Anthony von Leeuwenhoek saw the living cells. Robert Brown discovered the nucleus and प्रोटोप्लाज्म नेम्ड बाय द जे. पुरकिंजे. ठीक है, नेक्स्ट सेल थ्योरी. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सेल गिवन इन द सेल थ्योरी. इट इज़ composed by the M. Sheridan and T. Schwann. ठीक चिल्ड्रन, T. Schwann and M. Sheridan are the two biologists compose the cell theory. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी गिवन बाय द रुडोल्फ वर्चोव विच इज ही गेव द फ्रेज omnis celluli acellular मीन्स ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. कहता है कि सेल्स जो हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं बाय द डिवीज़न या बाय द ब्रेकिंग. ठीक है, तो मल्टीप्लाई होकर के या ब्रेकिंग हो करके या किसी भी तरीके से वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज और पॉइंट्स देखते हैं इसके. सेल थ्योरी के और पॉइंट्स हैं बेटा, 4 पॉइंट्स हैं इसके. फर्स्ट पॉइंट है इसका, बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. Second point, activities of an organism are the sum total of activities of its cell. And third point, cell developed from pre-existing cell. And fourth point, cells are structure and functional unit of living beings. Viruses are an exception to cell theory. Cell theory में viruses को एक exception केस के रूप में रखा गया है, क्योंकि viruses are the link between the living and non-living things. Clear it? Now we comes on the shape, size and number of cells. Any idea, students? What is the cell shape? No. The shape of cells is related to the specific function they perform. Means the cell structure is different according to their function. This is some cells works like a wire for transmit our sensation. Then there are longest cell of our body. These are the nerve cells. ठीक है, and some cells are spherical, some cells are cylindrical, some cells are spindle shaped. ठीक है, तो सेल की जो शेप होती है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. नेक्स्ट आता है, इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar for the particular type of cells. For example, nerve cells have a typical shape. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, it transmit the sensation. So the nerve cell is the longest cell of our body. It is like a wire. Cell size. The size of the cell also varies considerably in different animals and plants. अलग अलग plants में, animals में cell size change होता रहता है. The average cell size varies from 0.5 to 20 micrometer. Micrometer means 1 meter is equal to 10 to the power minus 6 micro. In human body,
द स्मॉलेस्ट सेल इज RBC एंड द लॉन्गेस्ट वन इज द नर्व सेल. ठीक है, सबसे छोटी सेल हमारी बॉडी की कौन सी है? RBC. एंड सबसे बड़ी सेल कौन सी है? नर्व सेल. एंड स्मॉलेस्ट सेल, ये तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हुआ, एंड पूरे सब जगह देखें अगर हम तो सबसे छोटी सेल जो स्मॉलेस्ट सेल है इट इज़ द PPLO, माइकोप्लाज्मा. ठीक है, PPLO जो है स्मॉलेस्ट सेल है. लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सेल. और लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल. ठीक है, ये इसका सेल शेप. एंड नाउ वी कम्स ऑन द नंबर ऑफ सेल्स. ये देखिए शेप देखिए सेल्स की शेप देखिए. दिस रेड ब्लड सेल्स देखिए ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर में होती है. मसल सेल स्पिंडल शेप. बोन सेल अबाउट राउंड. ओवम स्फेरिकल शेप. नर्व सेल इज लाइक ए वायर. ठीक है, ऐसी डिफरेंट जो सेल्स हैज डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल से ज़्यादा सेल होती हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारी सेल मिल करके एक ग्रुप बनाती हैं फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन. किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए बहुत सारी सेल मिल करके एक ग्रुप बनाती हैं. दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड द टिश्यू. ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास में कई सारे बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है स्टूडेंट्स का, और उनको कोई वर्क दे दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको टेक बोर्ड बनाना है. ठीक है, तो उनको अंदर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से उनको ये वर्क दिया गया है. उनकी ड्राइंग अच्छी है या उनकी राइटिंग अच्छी है. बिल्कुल ऐसे ही वो सेल्स जिनके अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए कोई एबिलिटी होती है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है. एंड दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड द टिश्यू. एंड many tissue combine together to perform a particular function, and then it is called the organs. And organs combine together make a organ system. This is called the body organization. Like this, ये देखिए chemicals means atoms and molecules combine together make a cell combine together to perform a particular function. Tissue combine together to perform a particular function. Organs combine to perform a particular function. Organ system. And this organ system combine together, many organ system combine together and make a body of an organism. It is called the body organization. Clear it? It is called the levels of organization या body organization. Next is types of cells. How many types of cells? Cell को हमने 2 parts में divide किया. It is divided in 2 parts on the basis of nucleus. Nucleus is developed और non-developed. ठीक है, इस बेस पर cells are of 2 types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. ठीक है, pro means primitive. pro का मतलब क्या होता है? primitive. karyo means nucleus, जिसमें nucleus primitive type का हो. primitive type का मतलब membrane bounded नहीं हो. The nucleus is not membrane bounded. In this cell, the nucleus is not membrane bounded. This type of cell is called the prokaryotic cell. ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया. यूकैरियोटिक सेल्स हैव द यू मीन्स एडवांस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर एडवांस न्यूक्लियस हो, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो. दीज सेल्स आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 parts on the basis of number of cells. If an organism has single cell only, then they are called the unicellular organisms. And the organisms have the multiple cells, these are called the multicellular organism. Unicellular organism जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एट्सेट्रा. and multicellular organism fungi, animals, all animals and all plants. ठीक है, multicellular organism is divided into 2 parts. ठीक है, it is called the plants and animal cells.
It is divided into two parts and it's called the plants and animal cells. Now we comes on the prokaryotic cell. It is the prokaryotic is the structure of bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया की बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो आउटर लेयर होती है, इट इज़ इन थ्री पार्ट्स, जैसे लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन और फिर डार्केस्ट ग्रीन. ठीक है, तो देखिए जो लाइट ग्रीन है इट इज़ कॉल्ड द कैप्सूल. फिर इनर वॉल, जो मिडिल वॉल है, मिडिल वॉल इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. एंड सेल वॉल के अंदर जो डार्क ग्रीन मेम्ब्रेन इट इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, थ्री पार्ट्स होते हैं इसमें. व्हाट इज़ कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. एंड इनसाइड इट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मीन्स जो हमारी बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स के वो ट्रांसफ़र करते हैं. These are called the genetic material, and genetic material is made up of DNA, deoxyribonucleic acid. It is made up of DNA का बना होता है. And this DNA is scattered in the cytoplasm. It has no membrane around it. ठीक है, नो मेम्ब्रेन अराउंड द DNA. कोई भी मेम्ब्रेन DNA में अराउंड नहीं होती जो साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट कर सके. ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. जिसमें जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, वो ऐसे ही स्कैटर्ड रहता है साइटोप्लाज्म में. दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और दिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. It is a very important word. Nucleoid is primitive material. The genetic material is not bounded by a membrane. And जो cytoplasm है, in this cytoplasm, no cell organelle is present except ribosomes. Only ribosomes is found in the cytoplasm because ribosomes has no membrane. तो membrane bounded cell organelles भी इसमें present नहीं होते हैं. ठीक है, it has a small spines like structure. It is called the pili, pili कहलाते हैं. And this is a longest structure, it is called the flagellum. ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर हो गए. 3 लेयर्स होती हैं, कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर पाया जाता है विदाउट मेम्ब्रेन. एंड जो क्रोमोसोमल DNA होता है इट इज़ लोकेलाइज इन ए रीजन, इन दिस रीजन विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड्री एंड फ्लैजिलम. ठीक है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में 2 टाइप की सेल आती हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स. ठीक है, देखिए ये यूकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज surrounded by a nuclear membrane, and in this is the nucleolus. Nucleolus means where RNA are found. It is also called the protein factory of nucleus. ये हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में. ठीक है, and membrane bounded cell organelles are present like mitochondria, like Golgi apparatus, like nucleolus. ठीक है, and centrioles and lysosomes. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी बॉडीज़. ठीक है, पिनोसाइटोसिस वेसिकल्स, ये सब इतनी सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल एंड द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम. ये देखिए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स में देखिए क्या डिफरेंस होता है. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती है, और जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल की बनी होती है. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूकैरियोट्स. पहले तो दोनों में बोथ कॉमन देखिए, कॉमन क्या होता है. बोथ जो मैंने आपको देखा ये कॉमन क्या होता है दोनों में. बोथ हैव DNA, बोथ हैव राइबोसोम्स, बोथ हैव साइटोप्लाज्म, बोथ हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ द कॉमन, इट इज़ द सिमिलरिटी. एंड डिफरेंस क्या होता है. इट इज़ द ओल्डेस्ट सेल टाइप. It is the oldest cell type means primitive types of cell, small and simple,
लैक न्यूक्लियस, लैक ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल सेल्ड, ये केवल सिंगल सेल को होते हैं। एंड एग्जाम्पल क्या है इसका? ऑल बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट में थोड़े कहना चाहिए उनमें थोड़ा सा और चेंजेस आ गए, अच्छे चेंजेस आए, और जिससे ये इवॉल्व हो गई प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में चेंज हो गई। लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इस साइज़ में प्रोकैरियोट्स से बड़ी होती है, और मोर कॉम्प्लेक्स में इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, कंटेन न्यूक्लियस और कंटेन ऑर्गेनिल्स। क्लियर इट? ये समझ में आ गया होगा आपके, व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स, व्हाट इज़ यूकैरियोट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन देम। क्लियर इट? नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स की नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन सेल, इट इज़ कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इफ द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, it is called the multicellular organism. Unicellular organism that only have a single cell. Example is amoeba, bacteria, paramecium, euglena and many other. ठीक है? Organisms of many cells, plants and animals. All plants, all animals, fungi, सब कुछ मल्टीसेलुलर के अंदर आता है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, it completed all the functions in a single cell. Excretion, respiration, digestion, all are completed in single cell. In multicellular organism, all the functions are done by the many cells or the group of cells या body organization, जो अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से डिवाइडेड हो जाते हैं फंक्शंस। ठीक है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? ये देखिए, फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्सेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन्स अ सिंगल सेल इन देयर बॉडी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन न्यूमरस सेल्स इन देयर बॉडी। नेक्स्ट है, डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। इन unicellular organism, simple diffusion is used as the transport mechanism. इसमें जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो ओनली डिफ्यूज़न के थ्रू होती है, कोई सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। इनमें सिंपल डिफ्यूज़न, एक्टिव एंड पैसिव डिफ्यूज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर यूज्ड। नेक्स्ट है, ऑल सेलुलर प्रोसेस आर कैरीड out by the single cell. इनमें cells in the body are differentiated in order to perform specialized